Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education with Vinay. Today we are going to see how to prepare a lesson plan during your internship of B.Ed. So let's see. First of all, for preparing a lesson plan, you have to mention the lesson plan number, which number of lesson plan you are going to prepare. Then you have to mention your name, date, date of delivering the lesson plan, school. This is the name of that school in which you are doing your internship, and class, this is the class in which you will deliver this lesson plan. And then you have to write the subject, for which subject you are preparing this lesson plan, and the period, in which period you will deliver this lesson plan. And then topics, duration is like how many minutes you will take complete this lesson plan. And if you have any subtopic, then you can mention here, and number of students. Then in the next step, we will see general objectives. What is general objectives? General objectives means there should be some fixed objectives, some aims of the teaching subjects, which subjects you are going to teach. Like here is the first general objective is to develop the interest of students in learning science. The second one is to develop the ability of imagination, reasoning, and observation. The third is to develop the scientific attitude, scientific interest in the students. Fourth one is to develop understanding about the reality and apply them in the real life. Fifth one is to enable them to get knowledge content in the lesson. It means जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है, ये जितने भी लेसन प्लान आप बनाएंगे सारे लेसन प्लान में सेम ही होता है. नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के में आता है कि आपने जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, उस टॉपिक से उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या लर्न करेंगे. जैसे मैंने अपना टॉपिक लिया हुआ है मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो स्टूडेंट्स में क्या लर्न करेंगे. तो स्टूडेंट उनका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा वो फर्स्ट होगा टू गेट नॉलेज अबाउट द रेफरेंस पॉइंट. स्टूडेंट रेफरेंस पॉइंट के बारे में लर्न करेंगे. Student will understand the motion along a straight line. What is the straight line motion? They will learn. Student will get knowledge about the learn distance and displacement. They will be aware about the what is distance and what is displacement. Student will understand the uniform and non-uniform motion. The next step is teaching aid. It's very important. The teaching aid. You have to use whiteboard. You can write here blackboard also. Marker. If you are writing here whiteboard, then you have to use marker here. If you are using blackboard here, you have to use chalk here. Chart, you can use chart, you can use duster. Duster is necessary. Whiteboard, marker, duster, pointer, it's necessary. And chart, craft paper, this is additional, you can use. And the next step, it's very important step. यहाँ से आपका मेन जो लेसन प्लान होता है वो स्टार्ट होता है. इसमें आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं, जिनमें पहला होता है टीचिंग स्टेप्स एंड टीचिंग पॉइंट्स. सेकंड होता है टीचर एक्टिविटी. थर्ड होता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी. फोर्थ होता है ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचिंग एड. एंड फिफ्थ वन होता है इवेल्युएशन. अगर आप चाहे तो यहाँ से ब्लैक बोर्ड वर्क को अलग कर सकते हैं और टीचिंग एड को अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके फिर 6 कॉलम बनेंगे. अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का. ये जो टीचिंग स्टेप्स होते हैं ये फिक्स होते हैं, आपको टीचिंग स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. और ये जो लेसन प्लान है ये हर वर्षीय लेसन प्लान है, इसलिए इसमें इंट्रोडक्शन आपको देना ही देना है. सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा किसी भी लेसन प्लान में. देखिए टीचर एक्टिविटी में जैसे ही टीचर क्लास के अंदर एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आप कुछ थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल. दे विल रिप्लाई, स्टूडेंट्स रिप्लाई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं. फिर टीचर क्या करता है, इंट्रोडक्शन में पूछता है हाउ विल यू टेल द लोकेशन ऑफ योर स्कूल. अगर आपको अपने स्कूल का लोकेशन बताना है तो आप क्या करेंगे. स्टूडेंट उतना रिप्लाई देंगे जहाँ भी उनका स्कूल होगा वो आंसर आंसर करेंगे.
It means you will use a point to describe the location of your school. Then student reply करेंगे yes sir. Now teacher again पूछेगा now tell me what is the state of ball when it placed on a table. So students reply करेंगे it is in the state of rest. Then again teacher पूछेगा what will be the state of ball when you start playing. जब आप प्ले करना स्टार्ट करते हैं तो बॉल की पोजीशन क्या होती है. स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे कि इट विल मूव. बॉल जो होगा मूव करेगा. देन टीचर पूछेगा if the ball travel in a straight line which type of motion is this. मोशन along a straight line. स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे. देन टीचर एक व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन क्वेश्चन पूछेगा. जब ये बोलेंगे कि इट्स ए स्ट्रेट लाइन, टीचर का क्वेश्चन होगा व्हाट इज ए स्ट्रेट लाइन. इट्स अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन क्योंकि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है. तो जब भी आपको इंट्रोडक्शन खत्म करना है आपको एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के साथ ही इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म होता है. जैसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है फिर टीचर वहाँ पे अनाउंसमेंट करता है टॉपिक का और ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे टॉपिक को लिखता है कि स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे लिखेगा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. आपका जो नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट पार्ट उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है इंट्रोडक्शन, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, प्रेजेंटेशन. इसके बाद दो और आएंगे. तो देखिए प्रेजेंटेशन में मैंने सिंपली क्या लिया है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का. पहले मैंने डिफिनेशन लिखा है द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द motion along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. Let A, B, and C represent the position of the object at different instants. At first, the object moves to C and B and reaches A. Then it moves back along the same path and reaches C to B. स्टूडेंट लिसन केयरफुली. स्टूडेंट सुनेंगे केयरफुली. और ये जो चीज़ मैंने लिखा हुआ है ये मैंने क्राफ्ट पेपर पर भी ऑलरेडी बनाया हुआ है. यहाँ पे मैंने केवल लेसन प्लान बनाया है तो मैंने यहाँ पे क्राफ्ट पेपर को मेंशन नहीं किया है. क्राफ्ट पेपर आप बना के एडिशनली ले जा सकते हो. नेक्स्ट टीचर बोलेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. So then actual path length covered by the object, it cannot be zero, negative or negative. It is a scalar quantity. This is the definition of distance and its properties. The shortest distance between the 2 points can be positive, negative and zero also. It is a vector quantity. This is the displacement. Student understanding the concept part जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ रहे हैं students. और उसी क्रॉप पेपर में टीचर रिप्रेजेंट करेगा कि व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस इक्वल टू OA प्लस AC. डिस्प्लेसमेंट OA माइनस AC. Now uniform motion and then non-uniform motion. Teacher will explain and student will answer and write down in their notebook. Next, application and synthesis. It's also important teaching point. एप्लीकेशन एंड सिंथेसिस में क्या होता है आपको. एप्लीकेशन एंड सिंथेसिस में आपने जो भी चार्ट पेपर क्राफ्ट पेपर बनाया है उसको आप शो करते हैं स्टूडेंट्स को. वो सारी चीज़ें आती हैं आपको एप्लीकेशन एंड सिंथेसिस में. हाउ यू आर यूजिंग योर टीचिंग एड्स. उसके बाद आता है जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन में सिंपली आप कंक्लूजन करेंगे कि आज स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ा है. लाइक सो स्टूडेंट टुडे वी लर्न अबाउट द मोशन लैंग्वेज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ यू कैन इवेलुएट द क्लास व्हाट स्टूडेंट्स लर्न. तो इवेल्युएशन के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है डिफरेंशिएट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे क्लास में. नाउ रिकैप्चुलेशन. रिकैप्चुलेशन में क्या होता है टीचर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन करता है. अपने जो भी लेसन प्लान को डिलीवर किया उस लेसन प्लान स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं आया उसको देखने के लिए टीचर क्या करता है रिकैप्चुलेट करता है. रिकैप्चुलेशन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कोई 2 3 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स से. स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे. उसके बाद आप स्टूडेंट्स को होमवर्क देंगे. होमवर्क में आपने जो भी पढ़ाया हुआ है उसी में से आपको होमवर्क देना है. देन लास्ट में यहाँ पे आपका सिग्नेचर आप प्यूपिल टीचर में आपका सिग्नेचर होगा. सिग्नेचर आप गाइड टीचर में. आप जिस इंस्टीट्यूट में गए हैं इंटर्नशिप करने के लिए वहाँ पर आपका जो आपके सब्जेक्ट का जो भी टीचर होगा यहाँ पे उसका सिग्नेचर होगा.
देन सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, यहाँ पे आपके सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा। थैंक यू।